Hello students, welcome back to the class. So in the last class we discussed regarding classification of element and periodicity in properties. So it was an important chapter which we completed in the last class. Hope you have gone through these chapters which I have already discussed. So today we will be starting a new chapter which is very important, that is called equilibrium. Equilibrium. So, although you are not familiar with this word, but you know its importance. तुम जानिचो डे टू डे लाइफ में तुम बहुत बड़ा फेस करिथिबो. So, equilibrium refers to that condition when two opposing processes take place simultaneously at the same rate. दुईटा opposing process जेतेबेले simultaneously हबो एवं same rate रे हबो, then a state is reached which is known as equilibrium. So, equilibrium refers to that condition when two opposing processes take place simultaneously at the same rate. So equilibrium can be of different types. In physical condition or physical state, it is physical equilibrium. For chemical reactions, it is chemical equilibrium, and for ionic reactions, it is ionic equilibrium. So in this chapter, we will mostly consider regarding chemical equilibrium and ionic equilibrium, which is very important from exam point of view, entrance point of view. Okay. So coming back to equilibrium. So I am giving a very common example. You must have thought tug of war. Tug of war कौन था ना मझे गोटे लाइन ड्रा कराई थाए गोटे दौड़ी थाए. सो ए रोप इज देयर. एपटे किछि लोक ताको ड्रा करथांती, एपटे किछि लोक ताको ड्रा करथांती. दिस इज कॉल्ड टग ऑफ वार. तो इनिशियली देखिबो तो एपटे थिबा लोक होय तो टिके जोर जो मान अधिका बळ होई जाय से कोन करथि जार फोर्स अधिका हुए से एपट को टाणी नियंती. सो इनिशियली कोन हुए ए मझी पोजीशन ता टिके स्विंग करि पारे माने एपट को किछि टाणी नै पारंती पुनी ए माने किछि टाणी नै पारंती. सो आफ्टर अ डेफिनाइट टाइम पीरियड किछि समय पर देखिबो स्टैंड स्टिल थिबो. सुताडा जो ठीक सही मेजर ऊपर थिबो. तुमको लागियो जेंती किछि होउनी, नथिंग इज हैपनिंग. बट अपोजिंग प्रोसेस कोन ना ये ताकू टाणुची एपट को, ये ताकू टाणुची एपट को. दीटा अपोजिंग प्रोसेस, दीटा अपोजिंग प्रोसेसेस, बट दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. सांगरे होउची ये आकु टाणला को ये याड को टाणुची, एपट ग्रुप जत टाणुची एपट को, एपट ग्रुप एपट को टाणुचंती. तो ए सिचुएशन विल अराइज व्हेन देयर इज नो मूवमेंट. तुमको लागियो जेमती दुई जन का टाणीबा बंद करछथि. नो, दुई जन का टाणीबा एमती एज यूजुअल जारी अछि. बट कोन होउची एमानकर जति के माने फोर्स अप्लाई करछथि एमाने भी इक्वल फोर्स अप्लाई करछथि. दैट मींस टू ऑपोजिट प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एट द सेम रेट. समान रेट रे होउची. एपटे जे माने एति जति बळ प्रयोग करछथि एमाने सेति बळ प्रयोग करछथि. तरो जेतला मूवमेंट किछि हबनी आमे कहबा सी सिचुएशन ता केतला पहुंची गला. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. So this is a general example of equilibrium and it is very important in our day to day life and also for biological processes, for chemical processes. बहुत गुरा chemical reaction अछि जोठी हमको मैन्युफैक्चरिंग दरकार ताले कोन हबो we have to take the help of equilibrium. Our biological process, most important process होछि oxygen carrying mechanism of our body. केमती हुए ना oxygen is produced at lungs. lungs रे हम इनहेल करी oxygen स्टोर हुए. से कोन करे readily combines with hemoglobin. hemoglobin is the oxygen carrier of the body. So hemoglobin सागरे oxygen कोठी combine हुए lungs रे. So because the partial pressure of oxygen is high at lungs ताले कोन हुए ना forward reaction हुए. कौन फॉर्म हुए HbO2. HbO2 it is called oxyhemoglobin. It is called oxyhemoglobin. So एठी कोन होची छुआ ना लंग्स रे होची जेतले ऑक्सीजन नो कंसंट्रेशन. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम केमती मेजर करछु ना इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर. कोई सेट चल रे छुआ फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स देयर कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तेनु पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट हाई एट द लंग्स जोठी हमें ऑक्सीजन अधिका स्टोर ही रहउची हमें इनहेल करिया फल रे ताले कोन होची ना फॉरवर्ड डायरेक्शन ता होची. सो ए कोन होची ऑक्सीहेमोग्लोबिन. It is transported to various tissues along with blood. Blood सागरे मिछि की various tissues पाखा जाई से पहुंचे. जता tissues पाखरे पहुंचे कोन है ना सेठी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कमी जाय. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम थाए तर कोन हुए ना बैकवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हो जाय. ताले सेठी कोन हुए ना ऑक्सीहेमोग्लोबिन ब्रेक करिकी आउथरे हीमोग्लोबिन आ ऑक्सीजन दियंती. सो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन रे ऑक्सीहेमोग्लोबिन
तयारी होची दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन कोन होची हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करचंती कोठी होची ना जोठी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत हाई लंग्स में तापरे त टिश्यूज रे पहुंचुचंती कोन होची सेठी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कमी जाउची एट टिश्यूज कोन होची ना बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होची बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट ही होची सो गोटे स्टेज रीच करिवो जतबेले व्हेन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस दे आर एट द सेम रेट रे चलिवो so that point is called equilibrium so एठी हमर प्रिंसिपल छो अप्लाई होची हम परे पढिया एबे कहि दोची छुआ शॉर्टली द प्रिंसिपल व्हिच इज अप्लाइड हियर इज कॉल्ड ली चाटेलियर्स principle which is a natural principle so any system wants to be stable wants to be in equilibrium जदि गोटे सिस्टम इक्विलिब्रियम रे अछि से नॉर्मली डिस्टर्ब होबे खोजन so the system wants to be in equilibrium at any cost suppose हम तक any means से डिस्टर्ब करिवा कोन हबो ना it will adjust itself in such a way that the effect of the change is nullified ताले से निजको एमती एडजस्ट करनबो जो चेंज सतबे तको करिया चाहतो so the effect of the change is cancelled or nullified that is called ली चाटेलियर प्रिंसिपल तेनु एठी छुआ देखो लंग्स से जतले ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अधिका अछि ऑक्सीजन को अधिका मिलछि तेनु रिएक्शन ता को डायरेक्शन पळेबो ना फॉरवर्ड डायरेक्शन ले सो दैट द इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन जतबेले टिश्यूज पाखरे पहुंचीबो से कोन हबो ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन सेठी अधिका अछि ऑक्सीजन कम अछि ताले कोन हबो ऑक्सीजन सेठी टिश्यूज को दवा पई से कोन करबो बैकवर्ड डायरेक्शन आसीबो टिश्यूज पाइले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विल कम बैक अगेन along with blood सागर मिसी हीमोग्लोबिन आउटर फेरि आसीबो पुनी ऑक्सीजन नै कि जीवो टिश्यूज पाखु so this is the general oxygen carrying mechanism of our blood which is maintained by equilibrium बहुत दरकार ये हमर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पई हैला but you know that if a lethal gas called carbon monoxide is present it interferes with the oxygen carrying capacity of our body जदि सामान्य परिमाण ले भी कार्बन मोनोऑक्साइड थाए ताले कोन हुए ना जदि कार्बन मोनोऑक्साइड रहि गला छुआ ताले कार्बन हीमोग्लोबिन affinity towards carbon monoxide is 1500 times more than its affinity for oxygen यार affinity oxygen पाई जति की ता अपेक्षा यार affinity carbon monoxide 1500 गुण अधिका so the affinity of hemoglobin for carbon monoxide is 1500 times more than its affinity for oxygen तेणु जदि कार्बन मोनोऑक्साइड हमें स्मॉल अमाउंट रे भी इनहेल करिचु ताले कोन हबो ना रेडिली इट विल फॉर्म HbCO that is carboxy hemoglobin ताले कार्बन मोनोऑक्साइड को उठो आसे हमको ना एनी इनकम्प्लीट कंबशन रो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहरिबो कंप्लीट कंबशन हेले छुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो इनकम्प्लीट इनसफिशिएंट जदि ऑक्सीजन अछि ताले कार्बन मोनोऑक्साइड हो सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एनी फ्यूल सो कार्बन मोनोऑक्साइड जदि लिटिल अमाउंट रे हम इनहेल करने छु कोन हबो इट इंटरफियर्स विथ द ऑक्सीजन कैरिंग मेकानिज्म ऑफ आवर बॉडी कोन करे ना जदि कार्बन मोनोऑक्साइड अछि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सागरे मिसिबो नाही बिकॉज़ तार एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अधिका ताले कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करबो सो द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज देयर फॉर ऑक्सीजन कैरिंग इज डिक्रीज तक परिमाण कमी जो द्वितीय कथा वंस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म ताले जदियो सफिशिएंट बॉडी रे थिबो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बैकवर्ड रिएक्शन को बहन कर दबो इट इनहिबिट्स द बैकवर्ड रिएक्शन माने बॉडी रे सफिशिएंट ऑक्सी हीमोग्लोबिन थिबो बट ताको डिकंपोज हे कि ऑक्सीजन से देई परिबो नाही तेणु लिटिल अमाउंट रे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेचु इट मे बी लिथल इट मे बी वेरी डेंजरस इट मे कॉज डेथ बिकॉज़ कार्बन मोनोऑक्साइड हैज द कैपेसिटी ऑफ इंटरफियरिंग विथ द ऑक्सीजन कैरिंग मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम डे टू डे लाइफ हम देखुछु आउट एग्जांपल छुआ तुमको दोची मन कर छुआ देखिथिबो द क्लॉथेस दे ड्राई अर्लियर व्हेन देयर इज अ विंड जतले लुगा तुम सुखिया को जाओ जदि पवन दउ थाए ताले लुगाटा शीघ्र सुखे जदि पवन न थाए लुगाटा देर रे सुखे सो व्हाई द क्लॉथेस ड्राई अर्लियर व्हेन देयर इज अ विंड ना मन कर छुआ तुम ऊपर रे लुगाटा सुखेलो दिस इज द क्लॉथ रे कोन अछि छुआ ना वाटर उदा हिक अछि लुगाटा सुखैयो जाइछो तापर क्लॉथ रे कोन अछि वाटर अछि लिक्विड फॉर्म रे वाटर अछि लिक्विड फॉर्म रे लिक्विड स्टेट रे ताले से कोन हो त सुखैलो तुमे से वेपोराइज हो वेपोराइज हे कोन हो सराउंडिंग को जीवो ताले एठी कोन हो H2O वेपर आस जीवो ताले वेपोराइज ले कोन हो वाटर वेपर फॉर्म हो तो लुगा त सुखैलो तो लुगा रे थिबा सो द liquid molecules present in the cloth is evaporated to form water vapors
तो किसी समय पर कोन हबो ना लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन द क्लॉथ विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग किस समय पर कोन हबो ना वाटर वेपर जो सराउंडिंग रे अछि आउ लुगार थिबा लिक्विड वाटर दे विल बी इन इक्विलिब्रियम माने जेतिकी परिमाण रे मॉलिक्यूल वेपराइज होतबे सेतिकी परिमाण रे मॉलिक्यूल पुनी कोन करतबे ना कंडेंस है कि कन्वर्ट होतबे लिक्विड को जेतिकी लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज हेबे सेतिकी वेपर मॉलिक्यूल पुनी लिक्विफाई हेबे कंडेंस हे जिवे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन सो ता माने कोन हुए किस समय पर इक्विलिब्रियम पहुंचे सो इक्विलिब्रियम पहुंच गला पर दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब पे खोजती नहीं कोइची सिस्टम सब इक्विलिब्रियम मेंटेन करिया पे चाहे माने कर छ पवन देला व्हेन देयर इज अ विंड ताले कोन हबो विंड जते बेले देला ये वेपर टाको एटू उड़ै नै गला वेपर टाको सेटू नै गला सराउंडिंग रे थिला वेपर टा ताको उड़ै नेला ताले कोन हबो इक्विलिब्रियम पुनी से मेंटेन करिया पे चाहिबो तेनु से कोन करिवो इंस्टेंटली एटी लिक्विड मॉलिक्यूल जति थिबे से माने वेपराइज कि वेपर फॉर्म करिवे जतले लिक्विड टा वेपर को कन्वर्ट हो जे माने कोन हबो लुगाटा सुखी जिवो द क्लॉथ विल ड्राई अप हैला कंडीशन कोन ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करिया पे जतले पवन टा दबो साइड रे थिबा वाटर वेपर उडा उडी जिवे बट इक्विलिब्रियम जेतु एस्टैब्लिश हेज का भितरे लिक्विड वाटर आउ वाटर वेपर भितरे ताले से चाहिबो से इक्विलिब्रियम टा मेंटेन करिया को एट एनी कॉस्ट एज पर लीचाटल प्रिंसिपल तेनु से कोन करिवो ताकू भरपाई करिया पे ताकू भरणा करिया पे कोन करिवो ना बेसी संख्यक लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल जेटा लुगारे अछि दैट विल बी इवापोरेटेड सो दैट इक्विलिब्रियम इज अगेन एस्टैब्लिश्ड आउथरे इक्विलिब्रियम टा एस्टैब्लिश हे जो so this is why the clothes they dry earlier when there is a wind so hope छुआ तुमे डे टू डे लाइफ रो घटुतिबा इक्विलिब्रियम रो एग्जांपल टा बुझितिबो नेक्स्ट विल प्रोसीड टुवर्ड्स chemical equilibrium and how it happens then students will go for an example of chemical equilibrium गोटे रिएक्शन देखिबा छुआ हाबर्स प्रोसेस एटा में ई थरे बहुत थर पडिबा हाबर्स प्रोसेस means manufacturing of ammonia हाबर्स प्रोसेस माने कोन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया ताले कोन रिएक्टेंट हेबे ना N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives rise to 2NH3 ammonia gas so this is called Haber's process कोन करूछु हमें ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके हमें प्रोड्यूस करछु अमोनिया व्हिच इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स ओके तो इनिशियली कोन हुए इनिशियली ओनली द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इनिशियली कोन हुए केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन चले सो इनिशियली ओनली द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस तापर when some of the product एठी कोन हिची एटा रिएक्टेंट these are the reactants these are the products so after some time some products are formed ताले प्रोडक्ट फॉर्म होला परे कोन हबो ना अमोनिया will decompose to give back नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अगेन किस समय परे जब किछि प्रोडक्ट फॉर्म हे जिवो अगेन कोन हबो जो अमोनिया रा प्रोड्यूस होची सी डिकम्पोज करी कोन हबो ना नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ताले कोन हबो द बैकवर्ड रिएक्शन will take place simultaneously after some time the backward reaction will take place okay so after a certain time interval kon hobo chua na rate of forward reaction koda epoda direction da rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction जेतेबेले रेट ऑफ बोथ द ऑपोजिंग रिएक्शन किए करूची फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन सो व्हेन द रेट्स आर सेम दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ताले सेटा कोन होबो हम एक डबल एरो यूज करबा दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ताले मन रखियो छुआ एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ टू ऑपोजिंग रिएक्शंस विल बी सेम एटी ऑपोजिंग रिएक्शन किए ना फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड and backward reaction when ammonia decomposes to give nitrogen and hydrogen tale equilibrium kon hobo na rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction that is the condition of equilibrium mulu koise achi that is the condition of equilibrium rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction jodi chha graphically ame dekhiba tale kemti hobo suppose this is rate versus time rate of the reaction versus time जदि गोटे ग्राफ प्लॉट करबा छुआ
ताहले कोन हबो ना देखो इनिशियली कहिछि छुआ प्रोडक्ट फॉर्म हेने थिवो तेनु ता रेट ता 0 रु स्टार्ट हबो तेनु कोन हबो ना 0 रु स्टार्ट हबो ये धीरे धीरे बढ़िबो इनिशियली रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वेरी हाई इनिशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ता बहुत हाई थिवो तेनु सी कोन करबो विथ टाइम कमिबो विथ टाइम इट विल डिक्रीज विथ टाइम ये धीरे धीरे कमिबो ताले कोन हबो आफ्टर अ डेफिनाइट टाइम इंटरवल ये गोटे जगह मीट करिवे देन विल बी प्रोसेसिंग इन द सेम रेट किछि समय परे ये कमी की जो रेंज पे आसीबो ये बढ़ी की सेही रेंज पे आसीबो ताले एट दिस पॉइंट कोन हे गला ना रेट ऑफ दिस रिएक्शन एंड रेट ऑफ दिस रिएक्शन आर सेम तो मीट करि गले ठी तणु कहिछि छुआ एई लाइन ता कहा पई हबो ना इनिशियली जार रेट ता 0 थिला धीरे धीरे बढ़ुची एटा कोन ताले दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दिस इज फॉर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली बहुत हाई थिबो कमिबो एटा कोन ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ताहले जो पॉइंट रे मीट करले सेही पॉइंट एठी कोन हे गला एई पॉइंट ता एट दिस पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एई पॉइंट रे तो एई पॉइंट ता कोन कहबे छ दिस पॉइंट दैट मीन दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम so at this point equilibrium is reached एठी पहुंचला जानिबो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम कोन हम जी पॉइंट देखो at this time the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction ताले हम कहबो इक्विलिब्रियम रीच कर जाई ठीक अच्छा so this is how the chemical equilibrium takes place in chemical reaction the rate of opposing reactions that is forward and backward reaction they become same ताले कोन कहउछ हमें this reaction reaches equilibrium ताले ଗୋଟେ डबल साइड एरो दिया हिच माने it will mean that these two processes or these reactions it may be for a physical process it may be for a chemical reaction they are in equilibrium जदि डबल साइड एरो अछि माने तुमे बुझिबो सेटा इक्विलिब्रियम रे अछि so equilibrium condition मन रखला rate of two opposing reactions are same they take place simultaneously but at the same rate ताले हमें सेही कंडीशन टा को इक्विलिब्रियम ताले with respect to the proceeding of reaction केते पर्यंत रिएक्शन टा जाईची एटी तीन प्रकार ग्राफ हे परिबो एटा गोटे प्रकार ग्राफ हैला आ दुटा ग्राफ छोटो करी ड्रा करछि छुआ देखो एटा रेट वर्सेस टाइम कोन हबो एटी इक्विलिब्रियम रीच करि गला एटी सो बहुत अर्ली रीच करि गला टाइम ना बहुत शीघ्र रीच करि गला ताले कोन हिच देखो ना अल्प किसी प्रोडक्ट फॉर्म हो रिएक्टर कोन इक्विलिब्रियम पहुंची गला सो अल्प प्रोडक्ट फॉर्म होईची इक्विलिब्रियम रीच करि गला ये गोटे कंडीशन आसिला छ एठी अल्प प्रोडक्ट फॉर्म होईची माने कोन रिएक्टेंट ता ऑलमोस्ट रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होईची सो कोन लिखिबो छ एटा होची एठी जानि परिया हमें रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड रिएक्शन ना जस्ट स्टार्ट हेची स्टार्ट हो इक्विलिब्रियम पहुंची गला आ गोटे प्रकार ग्राफ आसी छुआ ताले एठी कोन ना मिडवे रे अछि रिएक्शन इक्वली प्रोसीड करछि रिएक्शन इज इन द मिडवे ओधा आदि पहुंची जति की प्रोडक्ट फॉर्म होईची सेति की ऑलमोस्ट रिएक्टेंट कंज्यूम होईचंती ताले रिएक्शन इज द इन द मिडवे अल्प मीडियम टाइम नबो जेटी बहुत टाइम नबो आ गोटे प्रकार ग्राफ हबो छुआ रेट वर्सेस टाइम एठी देखो रिएक्शन ता ऑलमोस्ट कंप्लीशन आडो जाउची रिएक्शन बहुत अधिका प्रोडक्ट फॉर्म हेची रिएक्टेंट भी कंज्यूम सरी हेची सो रिएक्शन इज नियरिंग कंप्लीशन सरीवा को जाउची सेही बेले जाई की इक्विलिब्रियम पहुंचला सो इक्विलिब्रियम मे बी रीच्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट हो पहुंचो जेंति एठी हला बा मिडवे रे हेई पारे बा जस्ट रिएक्शन जत सरी आस्तो बहुत लिटिल अमाउंट रो रिएक्टेंट आउ थिबे सेते भी इक्विलिब्रियम पहुंच पारे सो इक्विलिब्रियम
को कंडीशन आसीबो अकॉर्डिंगली द केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स कौन ना इनिशियली होई पारे व्हेन द रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड बा मिड वे रे होई पारे रिएक्शन इज इन द मिड वे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आउ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रहितो इक्विलिब्रियम मिक्सचर रे आउ रिएक्शन नियरिंग कंप्लीशन बहुत अधिका प्रोडक्ट थिबो किंतु कम रिएक्टेंट थिबो रिएक्टेंट ऑलरेडी कंज्यूम होई सॉरी आस्थिबे सेतेबे इक्विलिब्रियम पहुंच पारे सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस द केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स रिएक्शन जो स्टार्ट होई परथाय नले मिड वे रे थाई पारे नले कंप्लीशन आड़ को जाई परथाय सो व्हिच कैन बी वेरी वेल डिटरमाइंड आमे आको जाई पढिबा फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ Kc एंड Qc Kc होची इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड Qc इज रिएक्शन कोएफिशिएंट सो Kc रो वैल्यू रु आमे प्रेडिक्ट करि परिया वेदर द रिएक्शन इज नियरिंग कंप्लीशन or just started or is in the midway. So from the values of these two Kc that is equilibrium constant and Qc that is reaction quotient we can predict regarding the completion of the reaction. ये तीन प्रकार कहली आमे प्रेडिक्ट कर दे परिबा. Kc रो वैल्यू ऊपरे आमे प्रेडिक्शन फास्ट कर परिबा. Then the value of Qc and Kc reaction quotient and equilibrium constant जदि हम कंपेयर करबा we can also predict regarding the completion or proceeding of the reaction. केते पर्यंत रिएक्शन ता जाय छै. So this is all about your chemical equilibrium. Then we will go for some examples of physical equilibrium which takes place in physical condition or physical states. So you know that there are three states: solid, liquid and gas. So the interchange of phase or the phase transformation processes can be of three types. So depending on that we will first discuss what are the various examples of physical equilibrium. Okay. So next we will discuss equilibrium in physical process or physical equilibrium. So equilibrium in physical process. So to understand the concept of equilibrium, so first let us consider physical process. Equilibrium in physical process. Let us consider the physical equilibrium first. हमें better बुझिया पे आगे physical process टा को बुझिया. So there can be two types of cases. Case one, phase transformation process. Phase transformation. What is that? We know that a substance can exist in three different phases. Called na solid, liquid and gas. So these are the three phases. So when equilibrium exists between two of them, then it is called physical equilibrium. कौन कौन है पहले देखो ना equilibrium between solid and liquid, equilibrium between solid and liquid, then equilibrium between liquid and gas, then equilibrium between solid and gas. Solid, liquid. Remember one thing, for physical equilibrium the system has to be closed system. It has to take place in a closed system so that the heat is not given out to the surrounding के the heat जाई न परिबो. So physical equilibrium पई कोन निहाती first condition, necessary condition is that it must take place within a closed system. The closed system भितर हेले ही physical equilibrium possible. Otherwise कोन हबो ना से surrounding को पळै जिवो ताले equilibrium possible हबो नाही. तो solid liquid कोन example लबा ना ice in equilibrium with water taken in a thermoflask. जेतला गोटे थर्मोफ्लास्क भितरे आइस और वाटर को नउछु तार कोन होची इट सीम्स दैट एज इफ द मास ऑफ आइस एंड वाटर आर रिमेनिंग कांस्टेंट बट दैट डज नॉट हैपन दे आर इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो डायनामिक इक्विलिब्रियम था दैट मींस बोथ द ऑपोजिंग प्रोसेस जति की आइस मेल्ट है कि वाटर फॉर्म होय सेति की वाटर पुनी कंडेंस है कि आइस फॉर्म होंती. ओके सो मेल्टिंग और फ्रीजिंग साइमल्टेनियसली चलता है. सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स. तापर लिक्विड गैस गोटे क्लोज ग्लास चैम्बर भितर नबा कोन वाटर which will in equilibrium with water vapor. गोटे क्लोज ग्लास बॉक्स भितर वाटर नबा
सो कौन हम से इवापोरेट करिवो वाटर वेपर फॉर्म करिवो देन दे विल बी इन इक्विलिब्रियम जति की परिमाण लो वाटर इवापोरेट होते सेति परिमाण लो वाटर वेपर पुनी कंडेंस की वाटर फॉर्म करथुवे सो रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ताले इक्विलिब्रियम अप्रोचेस सेमती सॉलिड गैस आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन वेपर आयोडीन जानिछो डायरेक्ट सब्लिमेट हुए आयोडीन वेपर सब्लिमेट माने कौन द प्रोसेस इन व्हिच द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस जो प्रोसेस रे सॉलिड टा गैस को डायरेक्ट कन्वर्ट हुए ताको आ जाए सब्लिमेशन ताले आयोडीन सॉलिड जदी नवा कोन हो से डायरेक्टली सब्लिमेट हे कि आयोडीन वेपर फॉर्म करबो तन आयोडीन वेपर पुनी कोन हो डिपॉजिट हे कि पुनी आयोडीन सॉलिड दबो so both the opposing processes that is rate of sublimation and rate of deposition will take place simultaneously example so hame बुझिया छा so these are the phase transformation equilibrium कोन होची तीन प्रकार फेज भीतर संग भीतर केमती इक्विलिब्रियम होची these are the examples then another case may arise that is dissolution of solid and gases in liquids liquid एतरा solid और gas को dissolve करिबा ताहले इक्विलिब्रियम will arise इक्विलिब्रियम will approach ताहले दुई प्रकार ही परिबा कोन ना गोटे हबो छुआ solid in liquid एटी गोटे फैक्टर आछि जो solubility which will remain constant कौन नबा ना हमें शुगर किछि चीनी नबा ताको पानी रे डिसॉल्व करबा ताले शुगर सॉलिड और शुगर इन सॉल्यूशन दे विल बी इन इक्विलिब्रियम ताले किछ समय पर कौन हबो आउ शुगर किछि अधिका डिसॉल्व होबो नै इट डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी द एक्सटेंट ऑफ the solute which can be dissolved in a given mass of solvent is called solubility ताले solubility पे डिपेंड करे sugar solid sugar और sugar in solution they will be in equilibrium हमें कौन करिया we will add sugar or we will dissolve sugar in a glass of water डिटेल्स हम बुझेबी डोंट वरी सेकंड कौन हबो ना gas in liquid देखिते हो छुआ समस्ते सोडा बोतल बा जो तुमे सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स बोतल देखिथिबो सो व्हेन वी ओपन इट्स सील ए फीज साउंड ठप करे गोटे साउंड ए फीज साउंड इज फॉर्म गोटे फीज साउंड आसे काहे की आसे ना सेथरे कोन कराय थाए ना अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कराय थाए वाटर रे सो दे आर कॉल्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ताले कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इन केस ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स ताले कोन करा जाय अंडर प्रेशर ताको डिसॉल्व करा जाय आ जत्ते अधिक कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होबो सेते अधिक टेस्ट होबो सो हायर इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व बेटर इज द टेस्ट तेणु कोन करा जाय इट इज गवर्न्ड बाय ए लॉ कॉल्ड हेनरीज लॉ पढ़िबा हम डिटेल्स रे सो these are the examples of your physical equilibrium or equilibrium in physical processes एथिका में डिटेल्स रे नेक्स्ट क्लास रे पढिबो सो these are the examples कोन हबो फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही परे नहले डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन लिक्विड्स तो छुआ बुझी परथिबो आज जहा जहा पढेली सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास इन इक्विलिब्रियम खाली तुम बुझिया थिला व्हाट इज इक्विलिब्रियम आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस physical equilibrium and characteristics of physical equilibrium. Okay, see you in the next class.